ہمارے باپ ابراہیم کی قربانی کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی دعوت تکوین کی کتاب 22واں باب پہلی تا 8 آیات۔ ان دنوں میں خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس نے کہا اے ابراہیم، اور اس نے جواب دیا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریہ کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تمہیں دکھاؤں گا سونی قربانی کے لیے چڑھا۔ اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچا اور اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چڑھائی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑی کے اوپر رکھا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور اسے کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے تھے۔ اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سونے قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور خدا کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان سے ابراہیم کو پکارا اور کہا خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے یہ کیا اور اپنے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور ایک کے سال کی ریت مانند بناؤں گا۔ روز زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائے گی کہ تو نے میرا کہا مانا۔ کلام پاک کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا۔ ہم سبوں کے لیے آج کی دوسری تلاوت رومیو کے نام پر اس کا 8 باب 31 سے 34 تک پڑھے گا۔ اے بھائیو، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف ہوگا؟ جس نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا بلکہ اسے ہم سب کے بدلے حوالے کر دیا، تو وہ اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کیوں نہیں بخشے گا؟ خدا کے برکتوں پر کون دعویٰ کرے گا؟ خدا ہی صادق ٹھہراتا ہے، کون مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع ہی جو مر گیا بلکہ جی اٹھا، وہ خدا کی جنت ہے، وہی ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ پاک نام میں پڑھے خدا آپ کے ساتھ ہو، مجھے مقدس پر مطابق مقدس مرکز اس کا 9 باب پہلی 9 آیات۔ اس کو یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی درشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی قصار ویسے نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا اور وہ یسوع کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اس لیے ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکایک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا،
पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया, जब तक कि इंसान मुर्दों में से ना जी उठे। जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और वो उस कलाम को अपने पास हप्पा करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मुराद है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। मसीह जी मेरे प्यारे बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आज ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਤਵਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਬਰਕਤ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਯਾਮ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ पर रजू जाए, बुरी रक्षा को छड़िए और खुदावंद की मकबूल नजर ठहरिए। और इस वास्ते इस बाबरकत मुकद्दस दिना के वास्ते सोने रब का शुक्र अदा करने कि जड़ा अपने कलाम के जरिए रोज़ा दुआ खैर ते रियासत के जरिए सारी जिंदगी च सानू बरकतां देना चाहता है। और अज दी कलामतां दे विच असीं देखने हैं इब्राहिम की कुर्बानी और खुदा यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाक़या। मसीह च मेरे सिसो इब्राहिम की बुलाहट जिहड़ी ये साढ़े वास्ते बहुत बड़ा सबक कि दुख सुख जिंदगी मौत हर जगह ते खुदा दे नाल वफादारी कर। इब्राहिम एक अमीर आदमी सी, उहदे अबाउ जदाद दे कोल है माल हर चीज वापर मिकदार च सी और इब्राहिम के कोल भी माल डंगर मवेशी और जमीन और हर चीज सी। लेकिन खुदा जो 75 साल का होता है तो उन्होंने बुलाता है इब्राहिम, उदो अब्राहम है, लेकिन जो खुदा उन्होंने बुलाता है तो नाल ही एक नवा नाम देता है इब्राहिम। पहले अब्राहम और नाम बदल दिए, जिम्मेदारी भी बदल, जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है और इस वास्ते फिर अब्राहम का नाम इब्राहिम। और जो 75 साल का है तो खुदा उनके नाल वादा करता है कि तू सब कुछ छड़ और उस सरजमीन पर जा जिहड़ी मैं तेरे दिखावांगा और मैं तेरे को दवांगा। पहले खुदा उनके नाल उस मुल्क का उस सरजमीन का वादा करता है और फिर एक वादा खुदा जो करता है तो ये वादा करने का एक अपना अंदाज है। हर एक जमाने के विच जो लोग कसमां खाते वादे करते उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ाकार होंदे सी, मुख्तलिफ तरीक़ाकार कि जी कोई भी अपने वादे तो अपने अहद तो फिरिया तो उहदे नाल पूंजी होवे। और जो खुदा इब्राहिम के नाल वादा करता है तो उस दौर च भी एक तरीक़ाकार सी कि परिंदियां नूं 2 हिस्सियां च वंड दिता जाता सी, कट दिता जाता सी और उन्हें एक नूं इस तरफ एक नूं इस तरफ और जिहड़े वादा करते हैं वो कटे हुए परिंदियां के विच भी गुजरते। और अगर कोई भी अपने वादे की हुक्म अदूली करेगा, अपने वादे तो फिरेगा तो उन्हें नाल भी यही हाल होगा। और खुदा जो अपने बंदे के नाल अहद बनता है कि मैं तेन उस सरजमीन दवांगा जिन्हें तेरी नस्ल हुक्मरानी करेगी। और फिर खुदा उन खैमे चो कटदा है रात के वेले और दिखाता है आसमान, ये आसमान दे जिन्ने सितारे ने मैं तेन इस तारियां की मानो औलाद दवांगा। और मसीह च मेरे सिसो देखो है खुदा वादा करता है, खुदा अपने बंदे नाल अहद बांधदा है और जो ये अहद बंदिया जाता है तो एक आपदा बोला वो जानवरों के विचों नहीं गुजरता है, परिंदियां के विचों नहीं। और देखो खुदा किस अंदाज से कि इस परिंदियां के विचों नहीं गुजरता है और अपने अहद का पक्का रहता है। और वो देखने वाली गल 75 साल की उम्र से वादा हो रहा है और 100 साल का इब्राहिम हो गया और हजे तक औलाद नहीं, हजे तक साथ नहीं। और की होंदा है इब्राहिम अपने खेमे के कोल बैठा होता है और देखता है कि 3 मुसाफिर लोग जिहड़े ने जा रहे हैं उन्होंने जाके दावत देता है मेरे खेमे च आके थोड़ा आराम करो और थोड़ा मौसम बेहतर होएगा फिर चले जाना। और अपनी बीवी को कहता है कि बड़ा सभा करो, मुलाजमान बड़ा सभा करो और बीवी को कहता है रोटी पका और उन्होंने हाथ पैर धोआ के खिदमत करना। और इब्राहिम इंज महसूस होता है कोई आम आदमी नहीं, ये खुदा की कोई खास बरकत है। और जो वो खाने तो ज़ियाफत तो सेव होंगे ने जांदियां हुई बरकत देंगे ने कि इब्राहिम ते सारा
आने वाले साल खुदा तेन बरकत देगा। हुण देखो 75 साल की उम्र च खुदा वादा करता पिया है औलाद का, और 100 साल की उम्र च खुदा वो बरकत दे रहा। और जो वो खादमा की खिदमत कर दे खुदा रुकी हुई बरकत भी बहाल कर देता। और इस अंदाज के बीच जो साराई जो सारा वडेरे होगी थोड़ा मुस्कुरा देंगे कि असी तो वडेरे हो गए, लेकिन मसीह च मेरे सिजो खुदा का बंदा इब्राहिम खुदा के वादियां थी ईमान रखता सी, इस वास्ते उन्होंने ईमानदारों का बाप किया जाता है। और फिर उन 25 साल इंतजार करने तो बाद जो इसहाक पैदा होता है तो खुदा एक नवी चीज कह देता है कि इब्राहिम अपने प्यारे बेटे को लैके उस पहाड़ पर जा जिहड़ा मैं तुहानूं दिखावांगा ते उनकी सोतनी कुर्बानी चढ़ा। ये एडा आसान काम नहीं। साढ़े धीआं पुत्र दुआवां मुरादा मांग मांग के लेते हो ते रब कभी लिया इन्हूं ज़बा कर दे, केड़ा करेगा है? जिन्हां ने दुआवां करके मिन्नतां मांग के गोडे रगड़ रगड़ के औलाद दित्ती होवे ते उन इब्राहिम 25 साल इंतजार करना पिया। और हुण खुदा कह रहे कि तू अपने प्यारे बेटे को लिया ते लिया के कुर्बान कर। और इब्राहिम इसे तरह करता है, उन्होंने अमूरिया के पहाड़ से ले जाता है और जाके जो हाथ पैर बांध के छुरी चलान लगता है खुदा का फरिश्ता इब्राहिम इब्राहिम अपने बेटे की छुरी ना चला, तू खुदा की नजर से मकबूल हो गई, तेरा ईमान पुख्ता है, खुदा की नजर से तू बड़ा है। और बाद जो वो खड़ा होता है तो पीछे देखता है कि एक बर्रा झाड़ियों के बीच फंसिया होता है और इब्राहिम उस पहाड़ का नाम खुदा मुहैया करता है, यहोवा यरी, कि जिथे खुदा ने बड़ा मुहैया किया और फिर वो बड़े को ज़बा करता। मसीह च मेरे सिसो देखो ये रोज़ियां दे अयाम के बीच ये इब्राहिम की कुर्बानी साढ़े वास्ते की सबक। देखो असी भी रोज़ियां च किया जाता है कुर्बानी दो, खरैत दो, बुरियां रवशां तो बाज आओ, तौबा करो, खुदा पर रजू लियाओ। इब्राहिम के सामने उनकी सब तो प्यारी चीज, सब तो प्यारी है हस्ती उनका बेटा है, उनका बेटा है, लेकिन वो अपने बेटे ने भी कुर्बान करने तो बाज नहीं आता। ते अज रोज़ियां के दिनों च असी सोचिए साढ़े वास्ते केड़ी प्यारी चीज, असी किनू दिल लगा के बैठे, माल दौलत इज्जत शोहरत अपनी वडो अपनी आनंद किनू किनू असी प्यार करने कि मेरी मैं है इगोइज्म अपनी इगो के पिछ रहिए। ये चीज़ां देखो कि मेरे वास्ते अज खुदा की चाहता है जिवें इब्राहिम को कहता है कुर्बानी दे, ते असी रोज़ियां के दिनों च केड़ी कुर्बानी दे सकते। मसीह च मेरे सिसो देखो जिंदगी दे विच बड़ियां चीज़ां, हुण एक छोटी मिसाल ही खानदानी जिंदगी च या साड़ी डेली रोजाना की जिंदगी च एक बंदे को बड़ा ही शौक है सिगरेट पीने, और रोज़ दे 2-3 डब्बियां फूकता है, तो रोज़ियां बीच एक भी फूक सकता है। और इस तरह ज़्यादा खान की बड़ी आदत है, रोज़ियां च परहेज करके किसी गरीब को भी खाने च शरीक कर सकता है। ठीक है ना, एक अंदाज है कुर्बानी का कि रोज़े सानू भी तौबा तब्दीली का वक्त देते हैं, कुर्बानी का है सबक देते हैं। असी की अपनी जिंदगी च इब्राहिम जो खुदा ने कहा कि तू अपना प्यारा बेटा कुर्बान कर, तो उन्होंने लै गया। और अज साढ़े वास्ते केड़ी प्यारी चीज़ है, असी किनू कुर्बानी दे के खुदा के बोले नजर ठहरा। मसीह च मेरे सिसो देखो अज की इस पहली तलावत विच खुदा आजमा रहा है। आजमाइश दो तरह की, एक शैतानी आजमाइश और एक खुदा की आजमाइश। शैतानी आजमाइश जी है सानू है शैतानी काम करने ते वरगलांदी और शैतान का साथी बनना, लेकिन जी आजमाइश खुदा वालों आती है वो साढ़े ईमान की परख है, साढ़े ईमान की परख है। इब्राहिम की आजमाइश खुदा वालों कि खुदा इब्राहिम को आजमा रहा है कि कितना वफादार, और इस तरह अयूब भी उन्हें आजमाया, उन्हें को सब कुछ ले लेता और आखिरकार उन्हें जिसम से कीड़े भी पै जाते और सारे सजन में भी पा जाते, लेकिन वो भी अपने ईमान से डाक गया और उन्हें भी क्या खुदावन तुम्हें दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। और आज इब्राहिम देखो खुदा की नजर से मकबूल होना। इस वास्ते एक रोज़ियां के दिनों से आजमाइश आती, लेकिन आया असी आजमाइश से डिग पे या खुदावन यसू से भी तरह ईमान से मजबूत होके कहने ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो, कि जो शैतानी काम साड़ी जिंदगी
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬਰਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਲਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। और फिर कहता है पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया कि खुदा ने अपने प्यारे बेटे का कुर्बान करने तो दरेक नहीं किया। इब्राहिम के बेटे की जगह बरा और अपने बेटे को आप उन्होंने बरा बना के कुर्बान कर देता। देखो खुदावंद यीशु मसीह आप बरा बन के कुर्बान हो जाता है ताकि असी जिंदगी पाइए ते कसरत न पाइए। इस वास्ते मसीह च मेरे सिद्धो आज की इंजील मुकद्दस बड़ा खूबसूरत वाक्य है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰੂਹ, ਸਾਡੀ ਤੜਪ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਹੇ, ਕੰਧ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ कि ये दुनिया के जिन्ने छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम नहीं करके असी खुदा की कुर्बत हासिल कर सकें, खुदा का जलाल, उनका नूर, उनकी नूरानी शख्सियत को देख सके। और आज खुदा अपना जलाल दिखाता है। तब्दीली सूरत ट्रांसफिगरेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ट्रांसफिगरेशन ये जड़ा वाक्य है, खूबसूरत वाक्य है कि खुदावंद यीशु मसीह पतरस, याकूब ते यूहन्ना दे नाल पहाड़ ते जाता है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼। ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨ? ਹੈ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਲਾਵਤ ਇੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸੁਣੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਬਾਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 40 रोजे दिन रात रोजे रखता है, फरिश्ते खिदमत करते हैं और आजमाया जाता है, बियाबान 'ਚ दुआ कर रहा होता है। और उस तो बाद ਅਸੀਂ देखने वो झील ते भी दुआ कर, फिर आज पहाड़ के उत्ते जाके दुआ करता पिया शागिर्दां नाल और अचानक उनकी सूरत बदल गई। और ਅਸੀਂ देखने सलीब के उत्ते मरदियां होइयां भी दुआ कर, उनकी जिंदगी दुआया जिंदगी हर लम्हा हर पल दुआ करता। और फिर आज जदों वो दुआ करते होंदे ने ते शागिर्द देखते ने उनका जलाली ते नूरानी चेहरा और वह घबरा जाते हैं, धुंधला जाते हैं और देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक दर्शन नहायत सफेद हो जाती और कोई कसार, कोई तोबी कोई सफेद कर नहीं सकता। खुदावंद यीशु का चेहरा नूरानी हो जाता है, जलाली हो जाता है, उनकी कुदरत, उनकी हशमत, उनका जाहो जलाल नजर आता है। और शागिर्द डर जाते कि मूसा ते इलियास, पतरस कहता आओ तेरे डेरे बनाए, लेकिन वो नहीं समझ सकते। मसीह च मेरे सिद्धो आज इस वाक्य तो सानू की सबक मिलता है। जरा देखना ध्यान देना, मेरी गल सुनना। जो आदम ते हवा ने गुनाह किया ना ते खुदा ने बागे अदन चो बाहर कढ़ दिता और आसमान आदम के वास्ते बंद हो गया। आसमान बंद हो गया क्योंकि बागे अदन चो कढ़ दिता गया। फिर गुनाह, मौत ते शैतान उनके ते काबज हो जाता है। लेकिन जो यीशु बपतिस्मा पाता है आसमान खुलता है, आवाज आती ये मेरा प्यारा बेटा अल-महबूब है जिंदे तो मैं खुश हुआ। देखो बपतिस्मे दे राही आसमान एक बार फिर खुल जाता है, खुदा के इंसान का मिलाप हो जाता है। और आज जो तब्दीली सूरत का वाक्य है ते फिर एक बार आसमान खुलता है, नूरानी बादल चो आवाज आती कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल-महबूब, इनकी सुनो। मसीह च मेरे सिजो आज ये तब्दीली सूरत के वाक्य ते इंसान ते खुदा का मिलाप होता है कि असी भी इस जमीनी सफर तो बाद उनका ओही जलाली, नूरानी और शाहाना चेहरा देखने के काबिल होना। इस वास्ते शागिर्दां ने एक झलक देखी ते डर जाते। मसीह च मेरे सिजो ये हुई झलक की खातर असी अपनी सारी उम्र में काम करने, कुर्बानियां देने, रोजे दुआवां करने ताजो असी खुदा का दीदार कर सके। और खुदावंद यीशु मसीह जो ये सारा वाकया शागिर्दां के सामने हो जाता है तो उन्होंने मना करता है।
ہے کسی نے دسنا نہ جب تک ابن انسان مر کے مردیاں چنا جی اٹھے اور وہ یہ مردیاں چو جی اٹھن نہیں سی سمجھ انہاں واسطے بڑا ہی سخت سوال سی کہ کی ہے کہ مر کے اذیت کرم تے موت چو گزر کے مر کے جی اٹھنا لیکن جدو یسوع اذیت کرم تے موت چو گزر ہے مر کے جی اٹھتا ہے تے پھر وہ سمجھے کہ باقی وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن جی اٹھیا مسیح چ میرے عزیزو آج خداوند دا اے جلالی چہرہ جڑا تبدیلی صورت کے موقع تے نظر آندا ہے اے انسان دی روح دی پیاس ہے اسی زمین تے اس الطار کو سجانے ہیں لیکن آسمان تے نواں یروشلم نمی ہیکل نواں الطار جتھے خدا اپنے فرشتیاں دے نال اپنے جاہ و جلال چ اپنی حشمت اپنے نور دے وچ ہوے گا اس جلال دے واسطے اسی اس دنیا چ تولو کرنے کہ خداوند سن اس قابل پاوے کہ اسی اوندا جلال دیکھ سکیں آج ایک جھلک دیکھ کے شگرد بند لاگے آؤ خدا کو دعا کریں کہ خدا اس مقدس ایام چے سانو کی برکت دے کیسے اپنی زندگی چ تمام کمزوریاں تے گناہاں تو دور ہو کے خداوند دے مقبول نصیب کریں اور ایک دن اس زمینی سفر تو بعد اوندا او جلال دے سکیے جڑا آج انہیں اپنے شاگرداں تے ظاہر کیتا مسیح خداوند دے وسیلے نال آمین